Hey guys, what's up? So, how are you guys doing? कैसे हैं आप लोग? CBSE Class 12th Board Exams will be held in March 2017. ये तो अब आप जानते ही हैं ना? Okay, and since this month is now not so far, so every one of you is stressed, depressed and anxious about what's going to happen. भाई क्या होने वाला है? So guys, here I am with this Mission 95% series in which I have discussed few points which will definitely double your chances of scoring high marks in your board exams. And by high marks, I mean minimum 95%. So low 95%. Okay. This lesson is presented by me, Vibhu God. Okay. So before we begin, this is our YouTube channel, My Free School. And as you can see, it's a total complete free initiative just for you guys. A platform where we are trying to create quality content for you guys to make your journey to success much more easier. So please guys do subscribe to this channel because it's your support which motivates us and gets us going. So please do subscribe the channel. Okay, you can check the link of the channel in the description below. So without any further delay, let's get started. Okay, so first of all, the very first thing which I want to say is that set your goals high and don't stop till you get there. सबसे पहला काम, ओके, ये आप लोगों को ही करना है, ये मैं आपके लिए करके नहीं दे सकता. यू हैव टू सेट योर गोल्स. पहली बात, आपको ये बात मान लेनी है, आपको ये बात समझ लेनी है कि यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स. यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स. ओके, देर इज नो अदर वे, देर इज नथिंग else which is more important. As of now, you have to score. Okay, so this is the first thing. Set your goals and please do set your goals high. Don't think कि आप नहीं कर सकते, अब नहीं होगा, टाइम निकल चुका है. It's never too late. Okay, बहुत सही टाइम है अभी भी. You can and you can. Okay, this is my mark sheet. Okay, in my class 12 board exams, this was my marks. I've just shown this to show you guys that you can, if I can do it, you can also do it. I was also a very normal student, and if I can do it, you can also do it. And because of this, I'm showing you this road. Okay, I cannot set goals for you, I can just show you the path. I don't want to limit my experience to myself. Okay, I want to share it with every one of you, so every one of you can be benefited. Cool. So now, first of all, the very first thing is just relax. Okay, जस्ट रिलैक्स. अभी आप कुछ भी सोच रहे हो ना, ये इतनी सी वीडियो देख के आपको 1000 चीज़ें याद आ जाएंगी. जस्ट रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आप ये सारी चीज़ें ना आपने अब तक तो सुनी ली होंगी, नहीं सुनी तो अब सुन लोगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, ये अगर इस क्लास में मार्क्स नहीं आए तो आज तक जितनी पढ़ाई करी है सब बेकार. इट विल डिटरमाइन योर लाइफ. अगर इसमें मार्क्स नहीं आए तो आगे की पूरी लाइफ खराब. इफ़ यू गेट बिलो 90% यू आर गॉन. कोई डी कॉलेज नहीं मिलेगा, डी कट ऑफ, ये वो 99%, 101% कट ऑफ हो जाएगी इस बार तो. लास्ट ईयर उनके बेटे के 98 आ गए थे. रूमर्स कि इस बार सिलेबस चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. ये बुक नहीं पढ़ी, पूरा पेपर इस बुक से आना है, स्टडी फॉर 26 आवर्स इन अ डे एंड वॉट नॉट. ओके, यू आर स्टिल ऑन फेसबुक एंड व्हाट्सएप. ऐसा कैसे? आपके तो मार्क्स ही नहीं आएंगे अगर आप अभी फेसबुक या व्हाट्सएप है. ये कौन सा क्राइटेरिया होता है? सो प्लीज डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, डोंट बॉदर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. कोई भी अगर आपको बात आके कहता है, जस्ट हियर इट, डोंट लिसन इट, डोंट टेक इट इनसाइड योर हेड. कूल, इधर से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, बात खत्म. ये बहुत से लोग होंगे आपको डीमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे, ऐसी सारी बातें बोलने की कोशिश करेंगे. जस्ट थ्रो इट आउट ऑफ योर माइंड. कुछ मत सुनो, जस्ट स्टे रिलैक्स. बहुत सही टाइम है, अच्छा टाइम है. यू कैन ईजिली स्कोर वेरी गुड मार्क्स. कूल. सो व्हाट इज आवर मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो? इट इज़ द 6 week प्लान. व्हाट इज दिस 6 week प्लान? देखो, अब दिसंबर मिड ऑलमोस्ट आ गया है. नाउ यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 6 weeks टिल योर February, like February first week maximum, because you have to spare your February, because your preparation in February will be dependent upon your date sheet which will come in the next month. Cool. So जिस subject में ज़्यादा टाइम है तो वो उस तरह से मैनेज होगा. बट एज ऑफ नाउ टिल February आपकी जो ये पहली रिविजन है, आई होप एवरी वन ऑफ यू, मतलब एक बार तो सब पढ़ ही चुके हैं यार. अब सब एक स्कूल्स में प्री बोर्ड या फिर फाइनल सेम्स या ऑल सच एग्जाम्स सब दे चुके हो, तो सब एक बार तो पढ़ाई कर चुके हो ना. सो दिस इज काइंड ऑफ अ फर्स्ट रिविजन. Cool. So स्पेयरिंग February, दिस इज द नेक्स्ट 6 weeks, जो कमिंग 6 weeks है, उनका एक डिटेल्ड प्लान है जो अगर आपने फॉलो किया तो आई कैन अश्योर यू दैट नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 95% एंड अबव.
ट्रस्ट मी, नो वन. बट वॉट आर द प्री रिक्विजिट्स, क्या चाहिए इस 6 वीक प्लान से, इस 6 वीक प्लान को फॉलो करने के लिए आपको ये कुछ चीज़ें चाहिए ही चाहिए. यू नीड दीज थिंग्स. सबसे पहले मोटिवेशन, बी मोटिवेटेड. ओके, जस्ट बी मोटिवेटेड. इट डजेंट रियली मैटर क्या मोटिवेशन है. यू हैव n number of motivating factors. Cool. So have your motivation with yourself, be motivated. You have to score. Okay, you have to score. Hard work and smart work. Okay, then planning, then guidance, and then self confidence. See, the second, third, and fourth point, we are there for you. Okay, we are there to explain you how to work hard, how to work smart. We are there to provide you guidance. We are uploading so many videos of all the subjects on our channel, My Free School. You can just go on and check out those videos here. I have uploaded videos of business studies. We will be soon uploading videos of accountancy and other subjects, so you can check them out. We are there to guide you throughout your journey. We are also here to make you plan your next few months, okay, so that you can score extremely high marks. Cool. But the motivation and the self-confidence, it's totally dependent upon you. Okay, it's your game, it's not our. Okay, you have to bring this motivation, you have to bring that confidence in yourself that you can do it. Okay, now the very first thing is planning. A goal without a plan is just a wish, and a failing to plan is planning to fail. ये तो BSc में पढ़ चुके होगे ना, ये तो बहुत ज़्यादा बार पढ़ चुके होगे, अब तो बिल्कुल नहीं बोल होगे. चलो एक लाइन तो याद हुई. अब जस्ट रिमेंबर, अगर आपने प्लानिंग नहीं करी ना, आप ऐसे ही बस पढ़ते चले गए, जब मर्जी आया सुबह उठे, अपनी अलमीरा खोली, जोन सी बुक दिख गई उठा के पढ़ने लग गए, ऐसे नहीं होगा. हैव अ प्लान इन योर माइंड, हैव अ डिटेल्ड स्ट्रेटजी इन योर माइंड. ओके, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू प्रिपेयर दैट प्लान ओनली. कूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक अ फ्लेक्सिबल टाइम टेबल. ये बेसिक्स हैं प्लानिंग के, बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें. मेक अ फ्लेक्सिबल टाइम टेबल. आप बहुत सारे ब्लॉग्स, आर्टिकल्स इंटरनेट पे पढ़ लोगे कि वेक अप एट 6 AM, ओके, देन 7 to 9 इको, देन 10 to ये वो. बाहर तुम्हें क्या पता, वो दूसरा जो बच्चा देख रहा है उसको पता है, उसको सुबह उठने की आदत है या नहीं है. ओके, फॉलो, रिस्पेक्ट योर डे शेड्यूल. ओके, जो तुम्हारी टाइमिंग्स हैं उसको रिस्पेक्ट करो, अपने कंफर्ट जोन में ऑपरेट करो. कूल. अगर आपको लगता है कि आप रात को अच्छे से पढ़ सकते हो तो रात को पढ़ो. आपको लगता है आप जल्दी उठ सकते हो तो जल्दी उठो. रिस्पेक्ट योर बॉडी क्लॉक. ज़्यादा इधर उधर की बातें मत सुनो कि नहीं अगर 6 बजे को पढ़ना है तो अबे कैसे थोड़ा हो सकता है. वॉट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस? हैव अ टारगेट बेस्ड स्टडी. दिस इज वॉट आई यूज टू डू. सेट योर टारगेट्स. ओके, कि आज मुझे 2 चैप्टर पढ़ने हैं, आज मुझे 3 चैप्टर पढ़ने हैं. ओके, तो उस हिसाब से अब उसमें अंदर अगर आपको 2 घंटे लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको 10 घंटे लग रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है. यू हैव टू कंप्लीट दैट थिंग. डोंट से दैट आज मैं 5 से सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक ये पढ़ूंगा, दिन 10 से. नहीं, मुझे आज ये पढ़ना है, जब मर्जी पढ़ूँ, जब मेरा मन कर रहा होगा मैं तब पढ़ूंगा. बट यू हैव टू कंप्लीट इट. ओके, यू कैन नॉट लाई टू योर सेल्फ. आपको पता है कि आप अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हो या नहीं कर रहे. सेट रियलिस्टिक टारगेट्स. ओके, हैव योर वीकली टारगेट्स. कूल. एंड देन अचीव देम. ओके, देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. इसका क्या मतलब होता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इसके बारे में भी आगे आपको डिटेल में बताऊंगा. देन रिविजन स्ट्रैटेजी, इसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा क्या है. सबसे पहले, दिस इज व्हाट आई मीन बाय द 6 वीक प्लान. वीक 1, वीक 2, वीक 3, 4, 5, 6. कूल. नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट 1 and 2? देखो, आपको अपने 4 सब्जेक्ट पहले डिसाइड करने हैं. यूजुअली मैं 5वां सब्जेक्ट इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर आप पे ऐसा है उसको लेके चल रहा हूँ. तो जो आपके कोर 4 सब्जेक्ट हैं, पहले आपको उन्हें डिसाइड करना है. कूल. ये 4 सब्जेक्ट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हें देखना है. देन यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट 1 and 2 एंड सब्जेक्ट 3 and 4. आई विल सजेस्ट कि अगर आप 1 and 2 सब्जेक्ट ले रहे हो तो फर्स्ट शुड बी योर थ्योरी एंड सेकंड शुड बी योर प्रैक्टिकल. देन अगेन 3 इट शुड बी थ्योरी और प्रैक्टिकल. और ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि अगर 1 and 2 है तो 1 डिफिकल्ट है, 2 थोड़ा ईजी है, या फिर डिफिकल्ट एंड ईजी इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन. अगर आप सब्जेक्ट फर्स्ट वीक में सब्जेक्ट 1 and 2 ले रहे हो तो 1 की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है और 2 की थोड़ी वीक प्रिपरेशन है. इस तरह से यूँ मत ले लेना कि दोनों की वीक है या दोनों की बहुत अच्छी अच्छी प्रिपरेशन है. ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं बनाने, इस तरह से कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. कूल. अब व्हाट इज वीक 1? वीक 1 में आप सब्जेक्ट 1 और 2 दो सब्जेक्ट एट अ टाइम उठाओगे. 7 days आप एक वीक में होते हैं, उसके टारगेट सेट करोगे कि आपको हाफ से भी ज़्यादा, आई विल सजेस्ट 70% ऑफ द कोर्स एक वीक में कवर करना है. अब कर सकते हो आप, एक एक दिन के आपको शेड्यूल बनाना है, एक एक दिन के टारगेट सेट करनी है, आज इतना, आज इतना, 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 और आपको उस हिसाब से एक वीक के अंदर 70% ऑफ द सिलेबस को कवर करना है. अब मैं जानता हूँ आपको सिलेबस सुन के बहुत कुछ याद आएगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है. अब सब कुछ नहीं पढ़ना है इस टाइम पे बहुत बहुत बेसिक लेवल पे आगे पढ़ना है. ठीक है, अब सिलेबस से यूँ मत सोचना इट्स अ ओशन, यू नो, आप डूबना नहीं है अब. ओके, यू हैव टू क्रॉस इट. कूल. देन वीक 2 में अगेन सब्जेक्ट 3 and 4, फिर वीक 3 में सब्जेक्ट 1 and 2,
क्योंकि आपने वीक 1 में ज़्यादा एफर्ट डाला 70%, इसीलिए बोला क्योंकि पहले पहले ज़्यादा एनर्जी होती है, देन थर्ड वीक में आपको वो उसको 100% तक ले जाना है, ठीक है। ऐसे वीक 4 में 3 और 4 सब्जेक्ट को 100% पे ले जाना है। 5 और 6 रिविजन है। 5th वीक में आप सब्जेक्ट 1, 2 को फिर रिवाइज करोगे, और 6 में तो 2 सब्जेक्ट्स को आप 3 वीक दे रहे हो, तो 1.5 वीक्स फॉर एक सब्जेक्ट, ठीक है। ये एक बेसिक मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से वर्कआउट करेगी। अब इसमें क्या करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले वीक 1 to वीक 4 अब क्या पढ़ना है, जो मैं कह रहा हूँ ना आपको 100% सिलेबस कवर करना है। आप सोचो भाई कैसे होगा, इतना सब कुछ है, ये है वो है, ओनली स्टिक टू बेसिक्स। अब इधर उधर की बातें नहीं करनी। मैथ से तो यूं नहीं आर डी शर्मा उठा के बैठ गए उस टाइम, नहीं पूरी आर डी शर्मा सॉल्व कर देंगे, भाई नहीं हो सकती। अगर आपने करी है, इफ डिफिकल्ट स्टफ, इफ यू हैव डन इट ग्रेट, रिवाइज इट। अगर कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें से जो नोट्स बना रखे हैं उन्हें देख लो, उन्हें रिवाइज कर लो, लेकिन कुछ नया शुरू मत करो प्लीज़, भगवान के लिए कुछ नया शुरू मत करना। जस्ट टिक टू योर बेसिक्स। आपने जो एनसीईआरटी जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो, देन स्कूल के नोट्स, एंड देन अगर आपने कोचिंग लिया है तो वहाँ के नोट्स, बस इन 3 चीज़ों को रिवाइज करना है, इन तीन चीज़ों को कंप्लीट करना है। इससे आगे नहीं बढ़ना है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी और बुक, जस्ट थ्रो ऑल अदर बुक्स आउट ऑफ योर हाउस, कूल। और कोई बुक नहीं रेफर करनी इस टाइम पे, बस इतना। ट्रस्ट मी, पेपर इन्हीं में से आता है, इनको पढ़ के जाओगे बहुत आराम से मार्क्स आएंगे। मत और चीज़ों में पढ़ो। अगर आप और चीज़ें शुरू करोगे तो सब खराब कर दोगे। वीक 5 और 6 जो रिविजन वीक्स हैं, उसमें रिविजन किस तरह करनी है, कीपिंग इन माइंड द डे बिफोर द एग्जाम। इसका क्या मतलब है, अगर बीएसटी का एक चैप्टर पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर स्टार्टिंग 1 चैप्टर ऑफ बीएसटी, प्लीज़ कीप इन माइंड दैट हाउ यू विल रिवाइज दैट चैप्टर 1 डे बिफोर द एग्जाम। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया तो ये सोचो कि अगर कल पेपर है तो क्या मैं इस चैप्टर को 45 मिनट्स में रिवाइज कर सकता हूँ, क्या मैं इस चैप्टर को अगर बहुत मार्केटिंग चैप्टर है फॉर एग्जाम्पल बीएसटी में, तो आप पूरा पढ़ लिया, तो आप ये मेक श्योर करो कि एक दिन पहले मैं 2 घंटे में इसको रिवाइज कर दूं, 1.5 घंटे में रिवाइज कर लूं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी हो गई है, तो उस लेवल तक प्रिपरेशन के लेके जाओ ताकि लास्ट में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो और पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, ठीक है। और रिवीजन करनी किस तरीके से है, सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स और वो बुक्स जो सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि टीएस ग्रेवाल का सेल्फ ट्यूटर, यू लाइक वगैरह बुक्स आती हैं, इन्हीं को रेफर करो। यूँ नहीं कि आप रिवीजन कर रहे हैं, चलो एनसीईआरटी हो गई अब रिवाइज करेंगे, एक बार पूरी आरएस अग्रवाल सॉल्व कर ले, नहीं, ऐसा नहीं करना प्लीज़। या फिर बीएसटी की अगर एनसीईआरटी याद हो गई है तो कोई और बुक उठा ली उसे याद करने बैठ गए, नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, उन्हीं में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। आप कॉमन सेंस लगाओ ना यार, अगर आप एक पेपर पूरा सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप सब तो रिवाइज हो रहा है ना, उसमें हर टॉपिक रिवाइज हो रहा है, हर चैप्टर रिवाइज हो रहा है। आपने 4 पेपर, एक पेपर में एक चैप्टर नहीं हुआ तो अगले पेपर में आ जाएगा वो चैप्टर, तो 4-5 पेपर सॉल्व करो, बैठ के सॉल्व करो, 3 घंटे रूम में देखो, अपने आप को लॉक करो, प्रॉपर शीट्स लाओ, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ पेपर करो, पूरे 3 घंटे में मैनेज करो टाइम, ठीक है। आप अगर अकाउंट्स के पेपर कर रहे हो तो देखो उसमें कि अच्छा मैं सेक्शन ये, अगर कोई भी ऐसे है जिस पेपर में सेक्शन वाइज होता है, या फिर अगर सपोजिवली मैं पहले 10 क्वेश्चन 1.5 घंटे में कर लेता हूँ, तो आपको ना एक बेंचमार्क मिल जाएगा। जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो आप देख सकते हो कि यार मतलब मैंने जो प्रैक्टिस करी है तो उस अकॉर्डिंग 1.5 घंटे में 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो अगर आप एग्जाम में लेट हो रहे होगे ना, तो आप अपने आप को फटाफट बैक कर सकते हो कि नहीं अब मुझे थोड़ा फास्ट होना है, अब मुझे थोड़ा स्लो होना है, अब मैं अप्रोप्रिएट टाइम पे चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, तो लास्ट में आप डिले नहीं होगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जस्ट मैनेज योर प्रिपरेशन इन सच अ वे। उसके बाद प्लीज़ अवॉइड ऑल दीज कॉमन मिस्टेक, डोंट आइसोलेट योर सेल्फ, सब कुछ बंद मत कर दो, सबसे बात, मेक फ्रेंड्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर पेरेंट्स एटसेट्रा, ओके। अपने आप को खुश रखो, बी हैप्पी, ओके। देयर इज़ अ कोट दैट देयर इज़ नो वे टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द वे टू एवरीथिंग, ओके। अगर आप खुश रहोगे ना, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ सही होगा। डोंट गेट आइसोलेटेड, डोंट फील टू मच डिप्रेस्ड, एंड डोंट चेंज योर स्ट्रैटेजी। कि कोई आके कह देना कि ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें से इतना पेपर आ जाएगा, ये तो डोंट जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट बुक, जस्ट स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी। जो अब हो गया वो कर लिया अब आपने, अब उस चीज़ को सिर्फ रिवाइज करने का टाइम है। डोंट लिसन टू रूमर्स के भाई सिलेबस चेंज हो गया, क्या हो गया क्या नहीं है, नए क्वेश्चन आएंगे, ये आएगा वो आएगा, डोंट लिसन टू इट, जस्ट स्टे काम, जो पढ़ा है उसी पर रहो, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो ने किसी भी तरह हेल्प किया है, इफ दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू इन एनी वे, देन प्लीज़ डू विजिट आवर चैनल माई फ्री स्कूल, डू लाइक दिस वीडियोज़, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड. Thank you for watching this video. Have an awesome day.